Good morning students, how are you all? So in my previous class I have discussed about the parts of the digestive system, diagram of the digestive system. मुझे लगता है शायद आपने प्रैक्टिस जरूर करी होगी घर पे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ दैट डायग्राम. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. Now we are starting the steps of nutrition in human being. Okay, so the first step, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे because it is a very simple step. Ingestion, it means the intake of food in our buccal cavity with the help of our hands. It is known as ingestion. As we know that we put our food in our mouth, and the cavity of the mouth is known as buccal cavity, and we use our hands to take the food inside the buccal cavity. So the process of intake of food by using the hands, it is known as ingestion. Okay. Now the most important step, which is a very complex process as well as we can say time consuming process, digestion. So we will study the process of digestion organ wise. So the first organ of our alimentary canal is mouth. It means first we will study the process of digestion in our mouth. In diagram I told you that there are three components in our mouth. First is the teeth, second one is the tongue, and third one is the salivary glands. So one by one we will discuss the function of these three different parts of our buccal cavity, how they help to digest the food. So firstly we will discuss about the teeth. We have 32 teeth in our mouth. Including this, our teeth have three important characteristics: heterodont, diphyodont, and thecodont. Okay, heterodont, diphyodont, and thecodont. Now listen me carefully. Okay, what are these three characters? Hetero means different, don't means teeth. It means we have 4 different type of teeth in our mouth. What are these 4 different types? Incisors, canines, premolars, and molars. Okay, incisors, canine, premolar, and molars. So heterodont means different type of teeth are present in our mouth. Now the second word, second characteristic. Di means 2. Phio means origination. Don't means teeth. It means in our life cycle our teeth come twice in our mouth. हमारी life cycle में 2 बार हमारे दांत निकलते हैं. First are the मिल्क टीथ्स. एज यू नो, दूध के दांत बोलते हैं नहीं बोलते? दूध के दांत आ गए, फिर वो टूटते हैं, फिर नए दांत आते हैं. ठीक, तो फर्स्ट आर द मिल्क टीथ्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज टेम्पोररी टीथ्स. एंड आफ्टर देयर डिटैचमेंट अनदर टीथ अराइजेज इन आवर माउथ. दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ्स. So first are the milk teeth and another are the permanent teeth. So this is the second feature. Now the third, theco. It means inserted. Don't means again teeth. Thecodont. It means our teeth are inserted into our jaws. हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें हमारे टीथ धंसे होते हैं, inserted होते हैं. That's why these are known as thecodont. Heterodont means 4 different type of teeth are present in our buccal cavity. Diphyodont means in our life cycle teeth come twice in our buccal cavity. Thecodont means our teeth are inserted into our jaws. Okay, these are 3 important features. Now we all know about that where we have 32 teeth.
Now to prove that we have 32 teeth, we have a formula, dental formula of human beings. Listen me carefully and watch the video very carefully. First we write the first letter of our teeth. I, incisor. C, canine. PM, premolars. M, molars. Incisor, canine, premolar, molar. Okay, clear? Now we have 2 incisor in upper jaw, 2 in lower jaw. 1 canine upper jaw, 1 canine lower jaw. 2 premolar in the upper jaw and 2 lower jaw. 3 molars upper, 3 molars lower. This is the formula of only one side of our teeth. ये जो फॉर्मूला है वो केवल हमारे हाफ साइड के टीथ का है, ठीक। 2 कैनाइन ऊपर होते हैं, 2 इंसीजर ऊपर होते हैं, 2 नीचे, 1 कैनाइन ऊपर, 1 कैनाइन नीचे, 2 प्रीमोलर नीचे, 2 ऊपर, 3 मोलर्स ऊपर, 3 मोलर्स नीचे, ठीक। अब कैसे निकालेंगे कि भाई 32 टीथ है, तो बायो में भी मैथ्स यहाँ पर लगाएंगे हम थोड़ी सी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी डिफरेंट टाइप की मैथ है। एड दीज 2 + 2, ओके, पुट द साइन ऑफ प्लस, देन अगेन प्लस, 1 + 1, ओके, 2 + 2, अगेन प्लस, 3 + 3, ठीक। इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को, सबके बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब भाई जोड़ लें, प्लस तो सबको करना आता होगा डेफिनेटली। 4 + 2 + 4 + 6, अब भाई जोड़ना कितना आया, 6 and 4 10, 10 and 6 16। अभी मैंने क्या बताया था, ये एक साइड का है, एक साइड में कितने दांत हैं हमारे, 16, सो मल्टीप्लाई बाई 2, इट मीन्स हाउ मेनी टीथ वी हैव, 32, ओके। हमारे 32 टीथ होते हैं, बट एक्चुअली अब ऐसा नहीं है। अब सुनिए क्यों नहीं है। हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे उनके टोटल 32 टीथ होते थे, ठीक है। क्यों होते थे भाई, क्योंकि उनकी बक्कल कैविटी का साइज बहुत एनलार्ज होता था, जिसमें पूरे 32 टीथ आ जाते थे बहुत आसानी से। बट एज द एवोल्यूशन अकर्स, द साइज ऑफ आवर बक्कल कैविटी डिक्रीजेस, हमारी बक्कल कैविटी का साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। दैट्स व्हाई नाउ वी हैव ओनली 28 टीथ। अब हमारे केवल कितने टीथ हैं, 28 टीथ हैं। हमारी जो 4 मोलर्स हैं अब वो डिसअपियर हो चुकी हैं। और अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर एक टर्म यूज करा था, वेस्टिजियल ऑर्गन, ओके। अब ये 4 जो टीथ हैं वो वेस्टिजियल हो गए हमारे लिए। कैसे, कभी कभी सुना होगा किसी किसी के पूरे 32 दांत होते हैं, मतलब सम ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैव ऑल 32 टीथ्स। तो वो 4 जो एक्स्ट्रा दांत आते हैं वो बाद में आते हैं और उनको एक नाम दिया जाता है कि भाई अब इसमें अकल आ गई इसलिए इसकी अक्कल डाढ़ निकल आई। एक्चुअली दीज 4 टीथ्स, रिमेनिंग 4 टीथ्स आर कॉल्ड विजडम टीथ। क्या कहते हैं इनको, विजडम टीथ, अक्कल डाढ़, ठीक। दीज 4 टीथ अराइज आफ्टर सम टाइम and because we have not proper place in our buccal cavity for these teeth, so they have not specific function, they create so much pain in our buccal cavity, so they are not in our use, हमारे कोई use में नहीं है। They are present in our ancestor but become non functional in our body, so they disappear, but sometime these organs start to arise again in our body, that's why these are called vestigial organ। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे एंसेस्टर में हुआ करती थी, हमारे अंदर डिसअपियर हो गई क्योंकि उसका फंक्शन नहीं रहा। लेकिन कभी कभी किसी के रीअपियर हो जाती है तो उसको दिक्कत आती है, इसलिए उसका अपेंडिटाइटिस सर्जरी कराई जाती है ताकि वो जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो अपेंडिक्स है, वो रिमूव हो जाए। ओके, तो अब सिंपल है, सबको मालूम है कि हम टीथ हमारे क्या क्या करते हैं, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, chewing
टीयरिंग, इट मीन सिंपल है, फिजिकली उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना है, नॉट केमिकली. दीज आर इन्वॉल्व इन द फिजिकल डायरेक्शन, टू ग्राइंड द फूड, टू मिक्स द फूड, टू च्यू द फूड और टू टीयर द फूड. लास्ट टाइम मैंने बताया था कैनाइंस आर लार्ज इन कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स. तो टीयरिंग मीन्स चीरना फाड़ना. कोई मीट मटेरियल होता है जब उसको, तो उसको चीरने के लिए, फाड़ने के लिए बहुत पैने दांतों की जरूरत होती है. सो कैनाइंस आर वेरी लार्ज एंड वेरी स्पेसिफिक इन द कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज टंग. इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी माउथ में फ्रेनुलम से जुड़ा होता है. बेसिकली टंग के ऊपर हम अगर देखें तो बहुत सारी बड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं. दीज आर कॉल्ड पैपिले. और नॉर्मली अगर बोलें तो दीज आर द टेस्ट बड्स, जो हमारी क्या होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं. तो दीज टेस्ट बड्स help to determine different type of textures of the food. different type के texture को determine करने में help करती हैं. as well as tongue also help to mix the food with saliva. saliva के साथ food को mix करने में भी help करती है. अब यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये दोनों जो ऑर्गन है, टंग और टीथ, दे आर ओनली इन्वॉल्व इन द फिजिकल डाइजेशन, नॉट इन द chemical digestion. So now we will discuss the digestion in buccal cavity, which is done by the salivary gland, which is actually a chemical digestion. The salivary gland, okay. salivary gland मैंने डायग्राम में आपको बता दिया था. 3 pairs of salivary gland are there: parotid, sublingual, submaxillary, which is also known as submandibular. So these 3 glands combine together and open with below the tongue with the help of salivary duct to secrete saliva. सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं. pH is 6.8, it means slightly acidic. It contains 2 specific enzymes, salivary amylase, Tylen. In some books lysozyme is also there, but the function is same. कहीं कहीं lysozyme होता है, कहीं कहीं Tylen होता है, तो फंक्शन सेम ही होते हैं दोनों के. अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या करता है भाई सलाइवा. ठीक है. अब सबसे पहले इसने मीडियम को क्या कर दिया, एसिडिक. अब 2 चीजें यहाँ पर हैं, एक तो इसका एसिडिक फ्लेवर, दूसरा ये एंजाइम. इफ you have any pathogen, any bacteria in your food, when you take the food in your mouth, if this food contain any bacteria, then because of this acidic texture and because of these 2 enzymes, this bacteria kill. It means कहीं ना कहीं सलाइवा हमें हमारी इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो हमारे फूड के थ्रू जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जा सकते हैं उनको वहीं से किल कर देती है. इट मीन्स प्रिवेंट आवर बॉडी बाय द इन्फेक्शन ऑफ एनी पैथोजन. ठीक. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द डाइजेशन स्टार्ट इन आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, केमिकल डाइजेशन. अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आवर स्टेपल फूड इज राइस और चपाती, ओके, विच कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट. दिस इज नोन एज स्टार्च. इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है. एंड इट इज enzyme which can degrade, which can convert into the simple particle carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट को उसके सिंपल पार्टिकल में तोड़ सकती है. मैं एक चीज यहां पर आपको क्लियर करना चाह रही हूं. उससे पहले हम फूड इस फॉर्म में खाते हैं और फाइनली वो ऐसे टूट जाता है. इट मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, सिंपल फॉर्म में टूट जाता है. ये हमने माउथ में लिया था, ये काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. इस दौरान ये छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज होता है, और छोटे और छोटे. आपको यहां से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि माउथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है फूड, सिंपल में चेंज हुआ, और सिंपल में चेंज हुआ, और सिंपल, और फाइनली सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गया. ये जो सिंपल फॉर्म आएगी आपकी, वो कहाँ आएगी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. ध्यान रखें, बीच में जितने भी आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, दे आर नॉट सिंपलर प्रोडक्ट्स, दे आर ओनली सिंपल. सिंपल में चेंज हुआ, लेकिन बिल्कुल फाइनली जो डाइजेशन होना चाहिए वो मिडिल ऑर्गन्स में नहीं होगा, फाइनल डाइजेशन होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको. ठीक. यहाँ पर स्टार्च जो है उस पर सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करेगा
and it converts the salivary amylase into maltose. salivary amylase जो है इस स्टार्च को किस में तोड़ देगा? माल्टोज में. इट मीन्स कोई बड़ा पत्थर जैसा था, ये कॉम्प्लेक्स था, इसको थोड़ा सा तोड़ दिया, ये नहीं बनाया, केवल थोड़ा तोड़ा है. ध्यान रखना, पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है. ठीक है, आप जब सीनियर क्लासेस में आओगे तो पढ़ोगे कि कार्बोहाइड्रेट कई तरीके का होता है, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड. तो ये कॉम्प्लेक्स वाला है, पॉलीसेक्राइड है. और पॉलीसेक्राइड किस में टूट रहा है? यहाँ पर अभी डाई में, मोनो में नहीं टूटा है, सिंपल में नहीं टूटा है. ठीक है, तो इतना काम होता है हमारा माउथ में. अभी इतना सब होने के बाद जब सलाइवा के साथ फूड मिल जाता है सिंपल फॉर्म में चेंज होने के बाद, तो एक लुगदी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, एक सॉफ्ट फूड हमारा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है हमारे फूड की, हमारे माउथ में. दिस इज नोन एज बोलस, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलस. एंड अगर हम डेफिनेशन निकालना चाहें बोलस की, देन व्हाट इज द डेफिनेशन? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ऑफ आवर माउथ इज नोन एज बोलस. जो पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, जो पार्शियली टूटा हुआ डाइजेस्टेड फूड है हमारे माउथ का, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस. व्हेन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू बोलस देन इट इज इजी टू स्वेलो इट. आसान हो जाता है इसको निगलना, ताकि आसानी से ये हमारे ईसोफेगस में, हमारी फूड पाइप में चला जाए. क्लियर? ओके. नाउ आवर सेकेंड organ in which digestion occur, that is esophagus, also known as food pipe, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप. हम बोल तो रहे हैं कि यहाँ पर डाइजेशन होगा, बट एक्चुअली देयर इज नो डाइजेशन इन आवर फूड पाइप. हमारी फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं शेयर करूंगी. हमारी फूड पाइप और विंड पाइप के का एक कॉमन पार्ट होता है फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स जो है उसका काम है हमारी फूड पाइप को हमारी विंड पाइप से सेपरेट करना. तो व्हेन वी आर टेकिंग द फूड देन देयर इज अ फ्लैप एपिग्लोटस विच क्लोजेज द फ्लैप ऑफ विंड पाइप, दैट इज ग्लोटिस. रोक देता है ये फेरिंग्स जो है, उसमें एक फ्लैप है, मस्कुलर फ्लैप एपिग्लोटिस, जो विंड पाइप के फ्लैप को क्लोज कर देता है, दैट इज ग्लोटिस. ताकि जब हम खाना खा रहे हो, व्हेन वी आर टेकिंग द फूड, देन द फूड कैन नॉट बी एंटर इनटू द विंड पाइप. अगर फूड एंटर कर गया विंड पाइप में, देन इट कैन कॉज मेजर इंजरी टू आवर सिस्टम. बहुत मुश्किल हो सकता है. आपने देखा होगा, आपके घर के लोग भी ये कहते होंगे कि जब खाना खाते हैं तो बात नहीं करनी चाहिए. ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट टाइम इट मे बी पॉसिबल दैट योर फ्लैप डू नॉट क्लोज एंड योर फूड पार्टिकल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द विंड पाइप एंड दे कैन कॉज मेजर इंजरी टू योर बॉडी. ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. अब आ जाते हैं ईसोफेगस पर, फूड पाइप पर. अब इनकी खास बात क्या है? इनकी जो वॉल है वो इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी है. द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स. वर्ड से पता चला होगा, हमारी इच्छा के बिना हम ये जो काम करती हैं वो हमारी इच्छा के बिना खुद से करती हैं. ठीक है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं है जो डाइजेशन को कंडक्ट करे. ये केवल एक पाथवे है जिसके थ्रू हमारा जो फूड है, हमारा जो बोलस है, वो माउथ से कहाँ जाता है? स्टमक में. माउथ से कहाँ जाएगा? स्टमक में. तो एक पाथवे है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत काम ये भी कर देता है. क्या काम करता है ये सुनिए. Because of the presence of involuntary muscles, there is a contraction and relaxation movements by esophagus which help to carry the food from the mouth to the stomach. These movements are known as peristaltic movement. इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट. एक नंबर में आ चुका है कई बार क्वेश्चन. व्हाट इज पेरिस्टलेटिक मूवमेंट? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स ऑफ द मसल और इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ फूड पाइप बाय विच easily food can transfer from the mouth to the stomach. These movement are known as peristaltic movements. एक बार हिंदी में और बता देती हूँ. ऐसी मूवमेंट्स, ऐसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स जिनके थ्रू हमारा फूड
आसानी से माउथ से स्टमक में चला जाता है, क्योंकि जो हमारा फूड पाइप है वो किससे बना है, इनवॉलेंट्री मसल से। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। तो इतना काम हुआ ईसोफेगस में। अब इसके बाद आपका फूड कहाँ आ गया, स्टमक में। नाउ द डाइजेशन इन stomach. Okay, our stomach have a special type of glands. These are known as gastric glands. क्या बोलते हैं इनको, gastric glands. And these glands has 3 type of cell in it. First is the mucosal cells, second are peptic cells, and third are oxyntic cells. These are the cells present in the gastric glands, and all these 3 glands secrete different substances. Mucosal cells secrete mucus, peptic cells secrete an inactive enzyme pepsinogen, and oxyntic cells secrete a strong acid HCl. ये 3 चीजें सिक्रेट होती है हमारे स्टमक में। अब इन तीनों के ही अलग अलग काम हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लेते हैं HCl। इसका फंक्शन, मेक द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक बनाए रखा है इसने मीडियम को, फूड के मीडियम को। ठीक, अब इससे क्या फायदा होने वाला है, अगर कोई बैक्टीरिया बच गया होगा माउथ में बाई द एक्शन ऑफ टाइलिन और लाइसोजाइम, तो वो यहां करके लो जाएगा। इट मीन्स एसिडिक तो बना ही रहा है मीडियम को, किल द बैक्टीरिया। अगर अभी भी कोई बैक्टीरिया बचा है फूड में तो उसको यहाँ आके किल कर देगा। मतलब वहां से अगर तू बच गया है तो यहाँ आके मरने वाला है निश्चित तौर पर। ठीक है, आगे भी बहुत सारे सॉल्यूशन है अगर यहाँ से बच जाता है तो। ठीक है, अब आगे आते हैं एक और चीज। ये जो एंजाइम है बेटा पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव एंजाइम अभी फंक्शन नहीं कर सकता, और ये अपनी एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है इसकी प्रेजेंस में, एंड इट्स एक्टिव फॉर्म इज पेप्सिन। इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, पेप्सिन। तो यहाँ 3 काम हो गए HCl के। पहला, फूड के मीडियम को एसिडिक बना दिया। दूसरा, अगर कोई बैक्टीरिया स्टिल रह गए हैं तो उसको किल कर देगा, और इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा। अब ये एंजाइम है क्या, ये एंजाइम है भाई एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। आप समझना, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक मतलब तोड़ने वाला, जो प्रोटीन को तोड़ेगा। अभी तक माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है ना, उसका तो हुआ नहीं अभी प्रोटीन का। तो यहाँ पर हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है भाई, कि जो हमारे फूड में प्रेजेंट प्रोटीन है उस पर एक्ट करेंगे ये भाई साहब। ठीक, और एक्ट करने के बाद नॉट सिंपलर, फिर से वही बात दोहरा रही हूं, फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू सिंपल पार्टिकल्स, एंड दीज सिंपल पार्टिकल्स आर प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। ये जो सिंपल पार्टिकल है वो क्या है, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। डाइजेशन हुआ बट पार्शली, नॉट कंप्लीटली। ओके, अब बचे ये भाई साहब, ये क्या करेंगे, अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है मीडियम में, तो इट मे बी पॉसिबल और इट इज डेफिनेट दैट बाय द एक्शन ऑफ दिस एसिड आवर द वॉल ऑफ आवर स्टमक मे बी हार्म्ड, हमारी जो स्टमक की वॉल है तो हार्म हो जाए। सो दिस म्यूकस कवर द वॉल ऑफ स्टमक। ये म्यूकस क्या करेगा, हमारे स्टमक की वॉल को कवर कर लेगा, ताकि ये एसिड के इफेक्ट से हमारे स्टमक को बचा ले। टू प्रिवेंट द इंजरी ऑफ स्टमक वॉल बाय द एक्शन ऑफ HCl. So these are the 3 things which are present in our stomach and which help to digest the food in our stomach. इसके अलावा एक चीज और है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर अपनी डाइट में क्या लेते हैं भाई, मिल्क। ठीक, तो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए छोटे बच्चों में एक स्पेसिफिक एंजाइम और बनता है उनके स्टमक में, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में ही बनता है हमारे उनके स्टमक में। एक एंजाइम होता है प्रोरेनिन, वो भी एसिड की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में अपनी एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है रेनिन में। ठीक, अब जो मिल्क होता है उसमें जो प्रोटीन होती है वो होती है कैसीन प्रोटीन। ओके,
तो जब ये रेनिन उस कैसीन पर चेंज करता है, सॉरी एक्ट करता है, तो उसको चेंज कर देता है उसके सिंपल पार्टिकल में पैराकैसिनेट। मैं एक बहुत नोन सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको यहाँ पर। एक आपने देखा होगा बच्चे जब दूध पीते हैं तो कभी कभी उसके बाद वो दही की फॉर्म में उसको उलटते हैं, दैट दही इज पैराकैसिनेट। पार्शियली डाइजेस्ट हुआ जो रेनिन है, सॉरी कैसिन है, वो पैराकैसिनेट में चेंज हो जाता है। एक तरह से समझो दूध दही में टूट गया, ठीक। तो ये जो एक्ट करता है एंजाइम, वो किस में करता है? छोटे बच्चों में उनके मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ आवर डाइजेशन। ये पहला पार्ट है माउथ का, ईसोफेगस का और हमारे स्टमक का। इसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद हमारा फूड और सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, एंड दिस सिंपल फॉर्म ऑफ फूड इज नोन एज काइम। इसको हम बोलते हैं काइम। अभी हमने माउथ में क्या सिंपल फॉर्म पढ़ी थी? बोलस। बोलस में चेंज हुआ था फूड। अब यहां पर ये काइम क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ऑफ स्टमक इज नोन एज काइम। अब डिफरेंस आता है बहुत एक नंबर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड काइम? बोलस और काइम में डिफरेंस क्या है? द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ऑफ आवर स्टमक इज नोन एज काइम एंड द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ऑफ आवर माउथ इज नोन एज बोलस। तो आज यहाँ तक बहुत है। नेक्स्ट टाइम फाइनल डाइजेशन पढ़ेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय। प्लीज रीड ऑल द कंटेंट वेरी केयरफुली। Again and again you observe the video. This is a very important question for the boards. So if you have any query, then you can write your query in my description box, or my students can send me individually message on my WhatsApp, and I will definitely solve their queries. Okay, goodbye, have a nice day.